Good afternoon, Prathamesh and Shikha. Welcome to I'm Possible and Smart, and thank you so much for taking time out for this. Today, I have with me, for the first time on this podcast series, Heroes of Inclusion, Kea Hatkar, who is my little girl. And I thought, what a better way to, to have a podcast chat with another rock star mom and son couple than having Kea join me, Thank you right? so much for inviting Thank you us. so much for inviting us. We are so happy to be here. You is Prathamesh. Why don't you tell us all a little about yourself and what does inclusion mean to you first? My name is Prathamesh Sinha, and my journey began in 2019, where after my second operation of brain tumor, I started as a motivational speaker in Ruby World, and at that time for 2 years or 3 years, I was in homeschooling only. My mother decided that we will go in a blind school and I will take admission over there. After 2 months, Tinkerbell Labs came to my life and I got to know about the Annie Smart class, about which I was very excited. And then Shark Tank opportunity came for me, and things then I never turned back. Providing equal opportunity to disabled people and uh, treating them equal is inclusion for me. And here I would like to thank my mother also, because when I was in the blind school, I didn't knew even that what is inclusion and what is disability. But my mother, she taught me that दब के नहीं रहना है. You have to fight for yourself and fight for inclusion. It was an honor for me and Kia to meet you at India Inclusion Summit last year. And like I was telling Shikha, you and me were talking when our children were on the stage, that it's been difficult, right? Being parents, I know that because I've walked this journey. It always starts with the mother and the father believing, right? And it's only then the child feels empowered and they come in the front, and then the world sees them the way that we wanted them to see. So, what's been your personal journey, Shikha? And I know that you have had to work hard. So don't. Give good upbringing to your child. So this is difficult for every mother, but it becomes more difficult, or you can say extraordinary effort if your child is extraordinary, or if your child is having some kind of difficulties or disability, you can say. I and Prathamesh both enjoy the journey very much. Yeah, struggle is there because everything I have to make him understand, like in the class only if he is studying, so I have to make him understand what exactly it is, what the shape, what the size. So every step at every point of um, every moment you have a struggle. When Prathamesh was 16 months old, now when he went to an operation, the brain tumor operation, after that he lost his vision. So it was a devastating situation for us, for me and for my husband. It took a very long time to understand and to accept that, oh, he cannot see. I was in a traumatic situation. I was in depression kind. कैसे इसको करूंगी मैं, कैसे पालूंगी? When he was 6 years, till then I did not make him disability card, because I was not ready to accept that he has some disability. For mother, it is quite difficult. After a Shark Tank, when Prathamesh was famous and I received so many calls, so I came to know that many mothers are struggling with the same. Pune, we live in Pune, so basically we are Hindi speaking. We belong to North India, so here the schools are in Marathi medium, especially for special schools. I was not sure that how I can enroll him in a school where Marathi, because I was not able to help him at all. Still the struggle is there, means very hard to find a good English medium school for visual impairment. Main part was his education. Education was like, no, not a single school was ready to take his admission. No, how he will study. It will be our Absolutely. responsibility. Our school is not made up in the way that we can support education of such child. Education or knowledge should have no bar. Means so I thought, no, he has he will have good education. I will educate him. I will give him study. I took various subjects, books from other different students. Okay, and I used to make him study. I'd like to ask this question to both of you. Why do you feel that there is a need for inclusion in our global society? It is a need for global education, globally inclusive system, because I faced so many difficulties in getting into mainstream, and there are almost 2% around
3 crore of disabled people, so they should be provided with equal opportunity, because as I say, you can't make society with just one type of one kind of people. You need to include everyone, and disabled people, they have talent and they can be also a great human resource. We have not able to recognize the talent and what they can do, how they can utilize the talent. So what I think is they should be given a chance, they should be provided with opportunity. Parents get frustrated because there is not inclusion. What they will do in the future? There should be inclusion, and every person should be included. There should be equality. In Srimad Bhagavad Gita also, it is written that everyone is from God only. हर कोई परमात्मा का अंश है. Then why there is a discrimination among people? Disabled people should be provided with opportunity and inclusion. हमारे देश में तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत जरूरत है। जब लोग हमें सुनते हैं, उनको लगता है, देख के उनको लगता होगा कि हाँ ये बहुत इजी होगा, कि चलो उन्होंने कर लिया, बट हमको तो किसी ने नहीं सिखाया। आज लाइफ में एज पेरेंट्स हमारे पास सिचुएशन ऐसे आ गया है कि हमको वो करने की जरूरत पड़ी है जो हमको किसी ने सिखाया नहीं है। बाय लिव्ड एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर से हम लोग खुद सीख रहे हैं पहले, और फिर हम लोग अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, जो कि आज के दिन में अपने डिसेबिलिटीज के साथ जी रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है प्रथमेश कि एक स्कूल का जब बिल्डिंग बनाया जाता है, और क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुझे मालूम है हमारे बिल्डिंग लॉज में, बाय लॉज जिसको कहते हैं, उसमें रैंप देना जरूरी है, वो बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाना जरूरी है। वो सब लिखी हुई है बाय लॉज में, मगर कोई इतना उसको इम्प्लीमेंट करता नहीं है हमारे देश में। एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल एस्टेब्लिश कर रही है, एक है उनको दिक्कत क्या है। मैं ओपनली ये क्वेश्चन उनको पूछ रही हूँ। ऑब्वियसली हमको तो चाहिए, हमको मालूम है इसकी जरूरत है। मेरा क्वेश्चन है उन लोगों से कि आप लोग एक रैंप क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते हो? आपको क्या लगता है कि जो भी स्कूल में आते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, बच्चे हो, सब लोग को इक्वली चलने की कैपेसिटी है? दैट इज वन क्वेश्चन। सेकेंडली, आप लोग इतने सारे क्लासरूम्स भर के बच्चों को एनरोल करते हो, एक क्लास में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो इतना ऑकवर्ड होता है, जहाँ पे कि इतने सारे बच्चे एक टीचर के ऊपर थोपा जाता है कि आप इनको पढ़ाई करवाओ। मगर ये क्या सही बात है? बच्चे जो डिसेबिलिटी के साथ है, वो कहाँ से टीचर का अटेंशन पाएंगे, जहाँ पे कि इतना पुअर स्टूडेंट और टीचर का एक रेशियो है? वो एक दूसरी बात है। तीसरी बात है, अगर आप इतने सारे क्लासरूम्स कर सकते हो, क्या आप एक क्लासरूम नहीं कर सकते हो जिसमें कि जहाँ पे कि जो बच्चे कम देखे या जो बच्चे कम चल फिर पाए, उनके लिए एक अलग अलग सेक्शन हो जाए? तो समझ लो जिनको फिजिकल चैलेंज है चलने फिरने में, उनको अलग से एक सेट ऑफ एक्टिविटीज करवाया जाए, फिजिकल एक्टिविटीज जो वो कर पाए। जो बच्चे देख नहीं पाए, उनको एक अलग तरीके से पढ़ाया जाए। हो सकता है उसके लिए एक स्पेशल एजुकेटर आपको चाहिए। हाउ डिफिकल्ट इज इट? आपको क्या लगता है, ये सोच सही है? Yeah, you are right कि they are making so much like they are making a huge building, so why they can't just build one ramp? Or you are right that every person is not equal in this world. अभी जो स्कूल का जो सिस्टम है ना, ये टोटल बिजनेस हो गया है। Total business. अगर कोई डिसेबिलिटी जैसी चीज है, उनको लगता है वो गवर्नमेंट का पार्ट है या कोई ट्रस्ट का पार्ट हो सकता है, वो उनका प्राइवेट स्कूल्स का या सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो स्कूल्स है जो इस तरह की रन होते हैं, वो स्कूल्स कैसे होते हैं? वो या तो ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं या तो गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं। लेकिन प्राइवेट में बहुत ही कम आपको ऐसे स्कूल देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्राइवेट में जो उनको स्कूल को बहुत ज्यादा ऐसे फैसिनेटिंग और बहुत सारे ऐसे बनानी है कि बहुत अट्रैक्ट करे पेरेंट्स को, जिससे हुआ है डिसेबिलिटी जिससे चीजें या फिर ऐसे बच्चों को भी एडमिशन हम दे सकते हैं। ये तो उनके कहीं से भी उनके डिक्शनरी में होता नहीं है। दूसरा सोच ये है ना शिखा, उनको लगता है कि ऐसे शायद लोग कम हैं जिनको इस चीज की जरूरत है। आपको एडमिशन देना है, आपको इनको सिखाना है, हाँ उसके लिए आपको शायद एक अलग रैम्प बनाना पड़े, एक अलग स्पेशल एजुकेटर रखना पड़े। मगर अगर एक ही एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे जाएंगे और रेगुलर जो नॉर्मल आप लोग कहते हैं जो बच्चे हैं उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, तो ही जाके ये बच्चे जो है कल अपने सोसाइटी में जी पाएंगे, क्योंकि उनको वही एनवायरनमेंट में अल्टीमेटली उतरना है। और ये इसके वजह से ना एजुकेशन सिस्टम में गैप्स हो रहा है, और यही इंडिविजुअल्स हैं जिनके टैलेंट्स इतने बड़े हैं, मगर उनको ना एवेन्यूज नहीं मिल रहा है कि भैया हम लोग भी आगे बढ़ के
पढ़ाई लिखाई करके अपना नाम जो है रोशन करें, राइट। ऐसे नहीं कि हमारा देश बैकवर्ड रह गया पहले की तरह, हम लोग काफी तरक्की कर रहे हैं, मगर ये एरिया में बहुत बहुत कम लोग जो है सोच रहे हैं। इंक्लूजन तो बहुत जरूरी है मनीषा। देखिए प्रथमेश या किया, इनके ऊपर मेहनत है, पर्सनल मेहनत है, तो ये बहुत उस लेवल में आ गए कि आज अपने बहुत नॉलेज है इनके पास, आज इनको एक पहचान मिली हुई है। लेकिन आप बताइए ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, अगर वो इंक्लूजन रहेगा तो ग्लोबली कहिए या नेशनली कहिए, आसपास के लोग उनके साथ मिलेंगे, इन्हें भी अच्छा लगेगा, ये समाज में मिंगल होंगे, क्योंकि इसी सोसाइटी में उन्हें रहना है। अगर 1,000 बच्चे, 1,00,000 बच्चे, 10,000 में 1 या 2 बच्चे इस तरह से होते हैं, इन सोसाइटी में रहना, हम इनसे अगर सोसाइटी से कट करेंगे तो इनके लायक एनवायरमेंट थोड़ी बना पाएंगे। तो इंक्लूजन रहेगा तो वो जो सामने नॉर्मल बच्चे हैं या नॉर्मल लोग हैं, उनके साथ इन्हें मिंगल होने में, इनको अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी बातों को रखने में बहुत आसानी होगी, और इनको भी ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ हमारे अंदर भी किसी तरह की कमी है। ये भी ह्यूमन रिसोर्स है हमारे लिए ग्लोबली। तो मुझे लगता है इंक्लूजन जो होता है वो दोनों बोथ साइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, और ये एजुकेशन से शुरू होना चाहिए। एजुकेशन अगर अच्छा है, स्कूल्स अगर गुड एजुकेशन दे रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बाद ऑफिसेस हो जाते हैं, फिर लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। Prathamesh, what is your ambition in life? What do you want to be, and what do you want to work on as you go ahead in life? I want to become an IAS officer, and I think it is a good way to promote inclusion. Like, if I become an IAS officer, along with it, my goal will be to work for inclusion, work for reducing discrimination. Mainly, what do you want to say that you want to work for inclusion, just because you people in future don't get discriminated on the basis of their disability. Yes, Kia, the question you asked me, I have the same question to you. That what are your ambitions, and what do you want to do like in future, and what do you want to do for inclusion? I actually had the same thought of being an IAS officer, because I think that inclusion is something that should be a part of our society, and if we are going to differentiate between each person, then there won't be a like, it'll be hard for people to communicate with each other. Because for example, if a person who is disabled has something that is in mind, and if they share it with another person, then both of those two people, they can work on something and create something big. So for example, if a normal person and a disabled person, if they work together, they can create changes, and I too would like to be an IAS officer. So tell me, Yes. is there any one person who can lead a fully able-bodied life from the time they are born to the time they die? Is there anyone? No. है कि नहीं? So does it mean Yes. that हम लोग सारे disabled लोग हैं? Do we call everybody disabled because of that? No, right? We don't. नहीं कहते हैं ना कि सभी में डिसेबिलिटी होती है, कुछ की दिखती है, कुछ की नहीं दिखती है। Exactly. देख किसी की ज्यादा दिनों तक दिखती है, that is the only difference. नहीं तो हम लोग सभी at different stages of our life हम लोग को कोई ना कोई दिक्कतें आती है। मैं तो हमेशा से चश्मा नहीं पहनती थी, आज मुझे चश्मे के बगैर दिखती नहीं है, थोड़े दिन बाद हो सके कि मैं चल भी नहीं पाऊँ। Does that make me from an able-bodied to a disabled person? तो पहले तो यार टर्मिनोलॉजी हमको ठीक करनी पड़ेगी, वो तो सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। हम लोगों में एबिलिटीज है और डिसेबिलिटीज है, और ये हर इंसान में है, एंड एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ देयर इज सम एबिलिटी, सम डिसेबिलिटी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। पहली बात तो ये है, एक क्वालिटी है जो पीपल विद डिसेबिलिटीज में होनी चाहिए, और वो है फियरलेस होके अपने मांगों को आगे रखना और अपने मांगों के सॉल्यूशंस के लिए दूसरों के साथ काम करना, राइट। ऐसे नहीं कि हम लोग आगे बढ़ के सिर्फ प्रॉब्लम्स बताएंगे हमारी, हमको प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस दोनों साथ में बतानी है। When you told that I want to be an IAS officer and Kia wants to be an IAS officer, so that reminds me of 12th fail. So what I saw there is like when he was giving his interview, he told that if I will not pass this exam,
I will teach children, and I will make sure that they don't cheat and they pass this UPSC exam. So this gave me an idea that if I can't be the sun who can rise and light up the entire sky, I can be the street lamp who can Absolutely. change many things. एक फैमिली है जिनका बच्चा, उनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, उस बच्चे को किसी तरह उन्होंने स्ट्रगल करके उस बच्चे को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराया, क्योंकि वो छोटा जगह है, वहाँ पर ब्लाइंड स्कूल्स नहीं है। लेकिन 1 साल या 2 साल किसी तरह होने के बाद उनके जो प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते हैं, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे कुछ हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं आनी चाहिए, जो भी है वो लेकर आ गए। और अभी वो सोच रहे हैं कि कहाँ एडमिशन कराएं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि अगर डिसेबिलिटी है तो शायद हमारी ही कुछ गलती है, हम फाइट नहीं करते। कितने लोग फाइट कर पाते हैं? फाइट नहीं हो पाता, इसलिए गवर्नमेंट भी स्टैंड ले ही नहीं पाती इस बारे में। मुझे लगता है सबसे पहले कि हमें, जो आपने कहा कि आवाज बहुत बुलंद तरीके से रखनी है कि भाई ये भी इनको मेन स्ट्रीम में मेन एजुकेशन आप दीजिए, ठीक है। और जो भी इनको जरूरत है, हर एक स्कूल में आप क्यों नहीं कंपलसरी करते हैं कि एक स्पेशल एजुकेटर हो, जो इनके लिए भी पढ़ाई, स्पेशल कमरा हो। इनको ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे मैं प्रथमेश की बात करूँ तो इनके लिए जैसे मैथ्स में अगर ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीजें हैं, वहां पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, या प्रैक्टिकल में चीजें आ सकती है। बाकी सारी चीजें तो वो हियरिंग से लिखकर सुनकर भी काम कर सकते हैं। तो कुछ चीजों पे ही आपको ध्यान देना है। Somewhere I've seen the biggest solution providers, जो लोग मतलब सही के solutions निकालते हैं, वो हम लोगों में से ही होते हैं, हमारे में से ही निकल के आते हैं। Like Prathamesh really said, जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि if you can't be that sun in the life of millions of others, you become the street lamp for a few around you, right? और अगर हमको ऐसे स्ट्रीट लैम्प्स भी बहुत सारे हम लोग बन गए फॉर पीपल अराउंड अस, तो हम लोग ही चेंज मेकर्स बन सकते हैं। मुझे एक बात बताओ प्रथमेश एंड शिखा, ये दोनों के लिए है, बिकॉज आप दोनों मेरे लिए एक टीम हो, राइट? मुझे तो कभी नहीं लगा कि प्रथमेश अलग है और मम्मी अलग है। मैंने दोनों को साथ में देखा था ऑन डे 1, और मैं हमेशा दोनों को साथ में देखती हूँ व्हेनेवर वी हैव मेट फॉर एन इवेंट और एनीथिंग एल्स। जिंदगी भर आपको किसी का बैकिंग लगेगा कि आप भी किसी दिन बड़े हो के आप उनका देखभाल कर पाओगे? जिंदगी भर तो नहीं लगी। इट विल नॉट रिक्वायर लाइक द होल लाइफ। समटाइम्स आई कैन आल्सो बी समवन्स बैकअप। हर एक बच्चे को सपोर्ट की जरूरत होती है बड़ा होने में, कुछ बनने में, मगर वही सपोर्ट घूम फिर के अपने माँ बाप को भी मिलना चाहिए व्हेन दे बिकम चिल्ड्रन अगेन इन देयर ओल्ड एज, राइट? ये चीज आप लोग दोनों याद रखना प्लीज, बिकॉज ये चीज जो है हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कहीं पे हमको लग जाती है वो दिमाग, डिसेबिलिटी जो है दिमाग में घुस के बैठ जाती है कि नहीं हम लोग जो है कहीं पे कमजोर है। मगर ये कभी बैठने मत देना, कभी भी बैठने मत देना, ओके? गेट दैट वर्ड डिसेबिलिटी आउट ऑफ योर रेडार, वो होनी ही नहीं चाहिए। आप इतना स्ट्रांग हो जाओ, एंड व्हेन आई से स्ट्रांग आई डोंट मीन फिजिकली आपको उठ के चल के जाना पड़े कहीं पे, नो, बट आप इतना पर्सनालिटी आपका स्ट्रांग कर लो ना कि आप उसी से, वही स्ट्रेंथ से आप दूसरों का देखभाल कर पाओगे, है ना? And talking about solutions, in my school there was one teacher known as Prerna ma'am. So she shared an incident with me that her cousin, one day she met with an accident. Her car fell down in the valley. Oh, okay. So now her hands and her legs have stopped working. So what she did is she went to Dubai. Now she owns like 5 or 6 companies, and she has even designed one car which is totally hand control, from accelerator, brake, steering, clutch, gear, everything hand control. Amazing. So, solutions can be made. Absolutely. I think I'd like to ask Prathamesh that what specific area of inclusion are you actively focusing on right now? So there are many areas, and all the areas should be treated equally. All the areas should be focused on, but I'm working on visual impairment since I'm brand ambassador of Tinkerbell Labs. In societies also, lifts are more inclusive now as compared to previous years. So in malls also. So India, or you can say in Pune also, it's becoming more inclusive. So this is the part which is very required, which is very important to understand. This
vision is very important, and if you don't have vision, so इट्स somehow कहीं ना कहीं थोड़ा हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कुछ काम करने के लिए। बाकी सारी विजन्स, बाकी सारी डिफिकल्टीज से मुझे लगता है आइज का होना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक बार आप देखने लगते हो तो कुछ बहुत सारी चीजें जो होती है वो अपने आप में डिसॉल्व हो जाती है। प्रथमेश faces so many problem because of his visual impairment, because as far as education is concerned, as far as so many things, so his main focus is to how to make aware people about that this is not the problem, there is solution, because there are एक चीज है जो ये फेस कर रहा है, सो इसके दिमाग में ये चीज रहती है कि मुझे लोगों को ये बताना है कि किस तरह से विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड अगर लोग हैं तो उनको किस तरह एजुकेशन दिया जाए, किस तरह उनको अगर जॉब है तो जॉब में किस तरह उनको इंक्लूड किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे मॉल्स में डेफ एंड डम लोग होते हैं, उनको भी रखा जाता है, लेकिन जो विजुअल इम्पेयरमेंट की बात होती है ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने आपके आंखों पर बैरियर हो गया तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। और जब तक कोई गुड एजुकेशन नहीं होगा, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, आपको तो और ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। प्रथम को मैं यही समझाती हूँ कि तुमको बाकी बच्चों से, मैं डिसेबिलिटी में ही बताती हूँ कि और बच्चों से ज्यादा स्ट्रांग होना है, क्योंकि तुम्हें चीजों को ज्यादा एनालाइज करके समझनी है चीजों को। तो है वो तो ये एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हम फेस कर रहे हैं सो कम से कम आने वाली जनरेशन में कोई छोटा हो तो वो फेस ना करे इस चीज को, क्योंकि एज अ मदर, एज अ प्रथमेश परेशानियां तो बहुत आती हैं। आपको जब पता चला कि प्रथमेश को ये चैलेंज रहने वाली है, आपने अपने रिसर्च में कोई ऐसे प्रोफेशन को या प्रोफेशंस को आपने एनालाइज किया जिसमें कि प्रथमेश आगे बढ़ सके? तो मुझे सबसे पहले चीज जो प्रोफेशन आया था वो आईएएस ही था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड या जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उसको यूज करना पड़ता है। और एजुकेशन अगर इनके पास है, कंप्यूटर इनको अच्छे से आता है, इनके पास राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, बहुत सारी जो सॉफ्ट स्किल्स इनके पास अच्छी हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट बेसिकली इनके पास आ सकता है। पहले प्रोफेशन जो है वो मेरे ध्यान में आई थी यही आईएएस, इसलिए मैंने बोला भी था कि तुम आईएएस, जब हमारी बातें होती थी। और दूसरी अगर मुझे लगती है तो ये होता है आजकल जो इन्फ्लुएंसर, ये जो है नहीं अपने आप में इन्फ्लुएंस करना, ये बहुत बहुत अच्छा आपका ये कि प्रोफेशन एक प्रकार से बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और खास करके वो इंसान मोटिवेट करता है जो इस प्रॉब्लम से गुजर चुका है, जिसने इस प्रॉब्लम को फेस किया है, और उसकी बातें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है लोगों को। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा, बैंगलोर की 1-2 इवेंट में प्रथम गया था, तो उन्होंने सब कुछ है उनके पास, लाइफ में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ गई ना, उनको लगता है कि वो सुसाइड कर ले या कुछ कर ले, लेकिन जब प्रथम से जब वो मिले तो प्रथम ने उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, और उन्होंने बताया कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, और मुझे नहीं पता कि मेरी विजन आएगी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पर एज ए स्पीकर आया हुआ हूँ आपके पास, और अगर मैं अपनी डिसेबिलिटी पर ही ज्यादा फोकस करना शुरू कर दूं तो मैं ना आपके पास आऊंगा, ना मैं दूसरों के लिए सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा, ना खुद ही लाइफ में कुछ कर पाऊंगा। तो अपनी जो समस्या है उससे हटकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबके पास, मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, सभी के पास प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, चाहे जो सक्सेसफुल है या जो सक्सेसफुल नहीं है, सबके पास। पर जो अपने प्रॉब्लम्स को साइड रखकर आगे बढ़ने लगते हैं ना, वही सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप दिन भर आप उसमें ड्वेल करते रहेंगे, अपनी सारी परिस्थितियों में घूमते रहेंगे ना, तो आप बढ़ेंगे नहीं। प्रथम को मैंने जब छोटा था तो समझा दिया था कि प्रथम दिस इज योर प्रॉब्लम, और हो सकता है ये कभी सॉल्व ना हो, लेकिन इसके आगे क्या, अगर दिन भर हम बैठकर दुखी हो या परेशान हो या रो तो क्या, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा ना, उल्टा जो हमसे मिलने वाले वो भी हमसे नेगेटिव ऑरा से ले जाएंगे। तो हम, ये एक पार्ट है, दिस इज नाउ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। You know, as Mama told that she explained me about what is the problem and everything. Now what happens is, if anyone asks, I tell Mama, you don't, I will explain you. You know, शिखा, यही मैं एक्चुअली इसके वजह से मैंने आप दोनों को बुलाया हुआ था, बिकॉज हम लोग को लगता है कि नहीं, ये कहाँ से ये आवाज आ रही है, ये आवाज हमारे लोगों में से ही आ रही है, हमारे फैमिली मेंबर्स से ही आ रही है, जो लोग बच्चों में इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और उनको इतना सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक यू नो शिखा, ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए, पेरेंट्स शुड बी लाइक दैट, चाहे वो बच्चों में कुछ नुक्स हो नहीं हो। अरे आप अपने बच्चों को एनकरेज तो करके देखिए, आप हर एक को एक जैसे बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? This is the question to both of you. What is your specific ask from the society to help you with your approach? What my ask is support, handholding, and
involving disabled people in mainstream. Like my mother said, blind schools, they are only here Marathi medium. This should be in all type of thing, English medium, Hindi medium, everything, so that visually, like visually impaired children or any kind of disabled children, they don't stay behind. They जो कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के चलना. Corporates, like, I think that they should involve the disabled people in mainstream. They should give opportunities to them in their offices, and they should give them a chance by providing them jobs. And one more thing I would like to, the comfortable environment or comfortable ambience Yes. for others, because normal people, or I have felt that like people make you embarrassed sometimes or make you feel that you are disabled. इतना lack of awareness है कि हमारे सोसाइटी में ये insensitivity automatically आ गई है. And I somewhere believe कि चाहे हमारी तरक्की जितनी भी हो जाए देश की, अगर schools पीछे रह जाएंगे, सब कुछ पीछे रह जाएगा. सब कुछ पीछे रह जाएगा हमारा. Like you are saying, लोग क्या कहेंगे? This is the biggest stigma of society, of parents, of everyone. What people will. पर हम बड़े शान से जाते हैं. हम कहीं पे मॉल गए, कहीं गए, मैं और प्रथम आराम से जानते, जिसको जो सोचना है सोचे. One question you asked me that what are the hurdles you faced in your life? So what I thought is, I asked my mother that preparing for this question, have I ever faced a hurdle? Because I don't take my disability as a disability, and me and you have crossed every type of difficulty together. So what are hurdles I can say to them? Honestly, Shikha and Prathamesh, I had a very nice talk. I don't know about you, Kia, but did you like chatting with Prathamesh and Shikha? Yes, very nice. Isn't it nice to see that at least even we have the same kind of thought process in another mother and son couple. तो हम लोग बहुत सारे parents हैं. I think ऐसे ही हम लोग बात करते रहेंगे, दिखते रहेंगे, लोगों को हमारी बातें सुनाती रहेंगे, ताकि हम लोग चीजों को normalize कर सकें. So Prathamesh and Shikha, thank you so much for doing this podcast with us. And Prathamesh, you are my favorite. Like I keep telling Kia, even more than Kia, you are my favorite. Yes. Doctor. Okay, so that is Kia. Kia, I don't know if you're feeling jealous, and I'm sorry. No. You're sure, No, right? Kia is my Yeah. Kia is my favorite too. So Kia is I your like favorite. Prathamesh too. Yeah, we all like each other. So I think the only message, Shikha, मैं आपको यही बता रही थी कि यही message देना था कि I'm so proud of knowing that you are braving this journey as it should be done. So please stay blessed and more power to you for doing what you are. Prathamesh, you need to be super proud of your parents. Okay? Because you are a rock star because your parents are a rock star. Thank you both Shikha aunty and Prathamesh for being here. It was absolutely wonderful speaking with you, and I really liked sharing my thoughts and hearing your thoughts from both of you. Thank you. Thank you, Kia. Thank you, Monisha auntie, for inviting us. Because you call different people in this podcast, but we are the ones who got the chance to spread the message of inclusivity. I'm very thankful to you.